गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ वाइट-सेवर्ट्स लॉ। नाउ व्हाट इज़ वाइट-सेवर्ट्स लॉ? फर्स्ट ऑफ ऑल वाइट-सेवर्ट्स लॉ है क्या है? आप लोगों को ऑलरेडी चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला गया है, बताया गया है कि व्हेनेवर द करंट इज पासेस थ्रू एनी कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड दैट कंडक्टर। उसके बाद उस मैग्नेटिक फील्ड का नेचर बताया है कि वो कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है अराउंड अ कंडक्टर। आफ्टर दैट आप लोगों को बताया था हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। दैट कैन बी फाइंड बाय यूजिंग right hand thumb rule or by using right handed screw rule. And now our next question is how we can calculate that value at any point around that conductor. So that can be calculated by using White-Savart's law. इसका यूज यही है, it is used to find the magnetic field at any point around any conductor. Now for that, first of all let us consider we have a conductor. This is a conductor having length A, and suppose here we have a point where we want to find the magnetic field at point P, which is at a distance R from this conductor. To find the magnetic field due to this whole conductor, let us consider a length element. क्योंकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर तो कुछ भी हो सकती है ना, तो हम लोग एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करके जितनी भी लेंथ होगी उसको पुट करके उसके ओवर उसको इंटीग्रेट करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट दिस इज ए बी a length element and this R and dl. There is between R and dl there is an angle of theta. Now let I be the current flowing through the conductor. Now according to White-Savart's law, the magnetic field because of this length element at point D at point P, that is dB, is directly proportional to, किस पे डिपेंड करेगा? ये चार फैक्टर पे डिपेंड करेगा. अकॉर्डिंग टू White-Savart's law, dB magnetic field at any point due to a current carrying conductor is directly proportional to quantity of current, magnitude of current that flows through that conductor. Second, directly proportional to length. dB is directly proportional to length. Length हम लोगों ने क्या कंसिडर की है? dl. Third one is dB is directly proportional to sine of the angle between R and dl. And fourth is dB is inversely proportional to square of the distance. Equation 1, equation number 2, equation number 3 and equation number 4. Combine all these equations, we'll get dV is proportional to I dl sin theta over r square, or dB is equal to k I dl sin theta over r square, where k is proportionality constant. यहाँ से proportionality sign हटा के हम लोगों ने k लगाया है. Okay, and k is here mu naught ओवर 4 पाई. इसकी वैल्यू पूछी जाती है पेपर में, इसके यूनिट्स भी पूछे जाते हैं. ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. सो वी कैन राइट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई dl sin theta over r square. So this is White-Savart's law in vector form. वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसको? dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई dl वेक्टर क्रॉस r कैप वेक्टर ओवर r स्क्वायर. बिकॉज यहाँ से जो dl वेक्टर क्रॉस r कैप है दैट इज इक्वल टू dl साइन थीटा. साइन थीटा है तो हम लोग क्रॉस की फॉर्म में लिखते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ r इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो dl
क्रॉस आर इज इक्वल टू DL साइन थीटा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हमें पता है यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर A cap is equal to vector upon its magnitude. So here we have unit vector R cap. ठीक है, so R cap is equal to vector over its magnitude. You can write R cap is equal to R vector over R, and we can put this value in this equation. So dv vector is equal to क्या आ जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई dl vector क्रॉस R वेक्टर ओवर R क्यूब, क्योंकि जब R कैप की वैल्यू पुट करोगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर इंटू R, दैट इज R क्यूब. So this is Voigt-Sievers law in vector form. Now magnetic field due to whole conductor. होल कंडक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी आप लोगों को पता है, इंटीग्रेट करके. मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर ओवर r क्यूब. ओके, सो टेक म्यू नॉट ओवर 4 पाई आउटसाइड, इनसाइड क्या आ जाएगा, आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर ओवर r क्यूब, दैट इज magnetic field due to this conductor. And direction of this magnetic field can be found by using right hand thumb rule, already आप लोगों को पता है. So this was the Voigt-Sievers law. इसके बाद इसकी applications आएंगी. First application है आप लोगों की to find the magnetic field due to a infinitely long straight current carrying wire. So for that, first of all, let us consider a straight wire ओके बेटा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ Voigt-Sievers लॉ. सो फर्स्ट एप्लीकेशन है यहाँ पे, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी करंट. लेट अस कंसीडर, सो फॉर दैट लेट अस कंसीडर वी हैव अ current carrying wire, infinitely long wire है, but we consider a portion its, that is AB. This is AB wire. Now let us consider O is the center of this wire. Okay, and there is a point C, or let us consider a length element DL at point C at a distance L from this center point, and let P is the point which is at a distance x where we have to calculate the magnetic field, and let this point C is at a distance r from point P. Now according to Voigt-Sievers law, what is the value of magnetic field at point P due to this length element DL? अभी हम लोगों ने Voigt-Sievers law में उसके लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया, दैट इज dP is equal to म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl sin phi over r square. Now here phi is the angle between dl and r and theta is another angle. तो यहाँ पे जो आप by definition use करोगे angle that is phi, so sin phi. Now in right angle triangle POC, this is POC. अब हम लोगों ने यहाँ पे दो टर्म्स फाइंड आउट करनी है, एक आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है साइन फाई, एक आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है कॉस थीटा. सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट साइन फाई एंड हियर वी हैव टू कैलकुलेट कॉस थीटा. तो दोनों केसेस में जो परपेंडिकुलर बेस है वो चेंज हो जाएंगे. ठीक है, पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं साइन फाई. अब साइन फाई, जिस टाइम आप लोगों ने साइन फाई फाइंड आउट करना है, सो दिस इज अ एंगल, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. सो साइन फाई किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. नाउ व्हाट इज द परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज PO ओवर हाइपोटेन्यूज इज PC, दैट इज x ओवर r, और साइन फाई इज इक्वल टू x ओवर r. फ्रॉम सेम ट्रायंगल you have to calculate now cos theta.
नाउ थीटा इज द एंगल, दिस इज द एंगल जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर hypotenuse, base is x, hypotenuse is r, so cos theta is equal to x over r। ठीक है, अब यहाँ देखो sin phi x over r, cos x over r, तो sin phi is equal to cos phi and is equal to x over r, और r is equal to, सॉरी यहाँ पे थीटा है, x over cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो साइन की टर्म है वो किस में कन्वर्ट कर दी, थीटा में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड tan थीटा। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल में से हम लोगों ने टेंजेंट फाइंड आउट करना है, tan थीटा फाइंड आउट करना है, tan फाई फाइंड आउट नहीं करना है। सो tan थीटा, अब टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। नाउ परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल इज OC and OC is equal to L, that is OC over base is PO, OC किसकी इक्वल है L, PO किसकी इक्वल है X, so tan theta is equal to L over X, this imply L is equal to X tan theta। now differentiating both side, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, dl इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आएगा, x। टेंजेंट की जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होती है, ऑलरेडी आप लोग मैथ में कर चुके हो, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने dl जो वेरिएबल है, dl जो लेंथ है उसको कन्वर्ट किया है हम लोगों ने वेरिएबल थीटा में। क्यों कन्वर्ट किया है, इसमें देखो जरा, हम लोगों ने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कंसीडर किया ना, यहाँ तो हम लोग एक छोटा पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग इस लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से जो एंगल है वो वेरी करेंगे। ठीक है, तो एंगल की वेरिएशन होगी। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें एंगल स्मॉल है, उसके बाद हमने लेंथ इंक्रीज करी है तो यहाँ पे जो एंगल थीटा 1 और थीटा 2 इंक्रीज हो जाएंगे। थर्ड केस में भी एंगल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, और लेंथ इंक्रीज करोगे आप तो एंगल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इंक्रीज हो रहा है तो हम लोगों ने dl को कन्वर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी है 1, इसमें वैल्यू पुट करनी है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या वैल्यू आएगी, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई एज इट इज I x secant square d theta cos theta over r square है हमारे पास, r की वैल्यू क्या है, x ओवर cos theta, r इज इक्वल टू x ओवर cos theta। ठीक है, sin phi की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, sin phi इज इक्वल टू cos थीटा, तो sin phi के प्लेस पे क्या पुट किया, cos थीटा। r किसके इक्वल है, सॉरी r इज इक्वल टू x ओवर cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू पुट की। और यहाँ पे जो dl है, ठीक है, dl किसके इक्वल है, जो हम लोगों ने अभी वैल्यू कैलकुलेट की, दिस वन। तो ये तीनों वैल्यूज पुट की, 1 2 एंड 3, तीनों वैल्यूज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया। नाउ दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू I x secant square theta d theta into cos theta 1 over cos theta किसके इक्वल होता है, secant। सो 1 over cos square theta किसके इक्वल होगा, secant square theta। सो दैट इज x square into secant square theta। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1x कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 इंटू I x cos थीटा इंटू d थीटा ओवर x। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड।
टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई कॉस थीटा डी थीटा ओवर एक्स। जो कांस्टेंट टर्म है उसको आउटसाइड लो, b इज इक्वल टू टेक आउटसाइड म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई, इनसाइड क्या आएगा, ऑब्वियसली x भी आउटसाइड आएगा, इनसाइड यू हैव कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करना आप लोगों ने, एंगल वेरिएशन हम लोगों ने क्या लिए, अब यहाँ पे देखो दिस इज b और a, इन दोनों को ज्वाइन करो, पी ए और पी ओ, ये जो एंगल बन रहे हैं ये एंगल यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है दैट इज ओवर थीटा 1 टू थीटा 2। अब थीटा 1 यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव लेना है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, और थीटा 2 पॉजिटिव लेना है क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन शो कर देती हूँ यहाँ पे, सो माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई x इंटू कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा फ्रॉम माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई x साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट, डिफरेंस इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा ये कैसे पुट करते हैं लिमिट्स। म्यू नॉट ओवर 4 पाई x साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये वैल्यूज आ गया हमारे पास। दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर एट एनी पॉइंट P in terms of थीटा एंगल। नाउ अगर हम लोग ये सपोज करें कि ये जो वायर है दैट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो जब हम लोग इसकी लेंथ इंक्रीज करेंगे कॉन्टिन्यूसली तो इसके जो एंगल है वो भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होंगे ना। और जब हम लोग इनफाइनाइट वायर कंसीडर करेंगे तो ये एंगल ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट हो जाएंगे। मीन टू से इट बिकम 90 डिग्री, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देन यू कैन राइट फॉर इनफाइनाइट वायर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 1 इज इक्वल टू 90, थीटा 2 इज इक्वल टू 90। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो हमने अभी कैलकुलेट की, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई x इंटू साइन 90 प्लस साइन 90, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई 1 प्लस 1, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई x इंटू 2 इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई x, or you can write it as b is equal to mu naught over 4 pi 2i over x. This is the expression for the magnetic field due to infinitely long wire which is inversely proportional to distance x.